कोशिश करते हैं कि कुछ नया बनाएं. हमेशा, that's one of the briefs that we have to our team, to try and do something new all the time. And we keep pushing the envelope every time to see how can we differentiate ourselves, what is new that we can do, and how we can provide variety entertainment to our viewers. Before I tell you more on Kavach, I want to apologize on behalf of whom I refer to as the Shonda Rhimes of India, Ekta Kapoor. वो इस वक्त तिरुपति बालाजी गई है दुआ मांगने शो के लिए, और ये भी है कि कल उनका जन्मदिन है. It is Ekta's birthday tomorrow, so Ekta, if you're listening, or as you watch, let me wish you a very, very happy birthday in advance, and hopefully the show will do very well. Since she was not here, we managed to get a small bite from her. I wanted to listen to her, see what Ekta has to say about the show from the creator herself, and we'll take it from there. We will slowly try and move into other bands as well. वो भी आपको देखने को मिलेगा. And that's it from me. Thank you very much for coming this evening. ये होटल बहुत दूर है. मैंने सोनिया को भी बोला है कि इतना दूर मत रखा करो. और टाइम पर भी शुरू नहीं हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे. And if you have any question and answer. According to the ratings, we've seen that, you all have come up with a lot of interesting shows. And the explanation that we always get is that it caters more to the rural audience, but according to the recent ratings, it's the urban audience who's watching these shows more. What do you think about that? Color's positioning has always been, we've maintained it, that all shows that we do is targeted at urban and LC1. If there is a spillover and if rural audience also like the show, that's good. Basically, I think when it comes to content, I think it's in our minds that there is a different content rural India watches and different content urban India watches. I don't think there's anything like that. When you're creating content, you create content for a viewer, maybe on their, for men or women or children. I mean, that could be possible. But other than that, you create content what you think will appeal to the thing. And at Colors, the way we look at it, we look at mass with class. That's the way we look at it. Yeah. And all our shows are that. And if you look at our ratings, for most of our shows, whilst we are focused on urban LC1, all our shows are doing extremely well in rural as well. Hello? Mona? Yeah.
नूपुर फ्रॉम E24। हेलो। कितना चैलेंजिंग रहा ये सुपरनेचुरल थ्रिलर करना? हमेशा पॉजिटिव किया है हमेशा आपने। इसमें एक्टिंग के जो 9 रस है ना वो सारे मुझे करने के लिए मिलेंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड। मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकली हूँ, वो कर रही हूँ जो आज तक कभी नहीं किया, और एक ऐसा शो का हिस्सा हूँ जो आज तक टीवी पे भी कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है। बहुत ही क्लासीली शूट कर रहे हैं। महक का भूत मेरी बॉडी में आएगा और पोजेस करेगा मुझे। अभी आपने उसका एक थोड़ा सा ट्रेलर देखा। सो एज एन एक्टर इट इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइंग। बहुत मज़ा आ रहा है। हाय विवेक, Hi. Barjatia from आज तक। Hello. Well, my question is, एक तरफ घर वाली रहेगी, एक तरफ भूत वाली रहेगी। So कैसे आप दोनों को मैनेज करने वाले हो? क्या कहा आपने? एक तरफ भूत वाली, एक घर वाली, एक भूत वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसे मैनेज करने वाला हूँ? Exactly. भाई दोनों बहुत खूबसूरत हैं। एक्चुअली जो शो का जो प्रमाइस है वो ये है कि जो भूत वाली हैं वो मुझे चाहती हैं, राजवीर को चाहती है, और वो किस तरह राजवीर के ऊपर पहले उसको वशीकरण उस पर करके एक स्पेल में डाल के और हम दोनों का ब्रेकअप करवाना चाहती है। सो कैसे मैनेज करेंगे वो तो अभी देखेंगे आप शो में कैसे मैनेज कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे परिधि मेरा कवच है, मैं भी कोशिश करता हूँ कि इनका कवच बनने की, लेकिन मैं कहीं ना कहीं अपने आप को हेल्पलेस पाता हूँ काफी हद तक। क्या हुआ? सो यही है, दिस इज द जर्नी नाउ कि हाउ टू मिटिगेट द डेंजर जो दैट इज बीन क्रिएटेड बाय मंजुलिका। हेलो महक, हाय। मेरा सवाल आपसे है, हमने आपको मूवीज़ में देखा पहले, फिर रियलिटी शोज़ में देखा, अब पहली बार आपको फिक्शन में देखने जा रहे हैं, तो क्या टीवी से आपने दोस्ती कर ली है और टीवी पर हम आपको ज़्यादा देखने वाले हैं? मुझे लगता है आज अगर देखा जाए तो फिल्म एक्टर्स या टीवी एक्टर्स या कोई भी हो, सब साथ में ही काम करते हैं। मेरे लिए कोई कभी अलग नहीं रहा है। आज इतने बड़े बड़े एक्टर्स, अमिताभ बच्चन, मिस्टर सलमान खान, सब लोग टीवी पे ही काम करते हैं। एक्टिंग ही होती है, टीवी पे करो या फिल्म पे करो, एंड इट गोज ऑल, इट्स हैंड इन हैंड। एज आई सेड, टीवी आज इतना बड़ा मीडियम है। मैंने रियलिटी शोज़ की हैं, फिल्म्स भी की हैं। मेरे लिए एक्टिंग, I feel that I should do it in TV, I should do it in reality shows, I should do it in films. And I'm lucky that मैंने अपना बिग बॉस भी कलर्स के साथ ही किया था और मेरा पहला फिक्शन भी इनके साथ है. And who's better than Ekta ji? So of course I couldn't say no at all. And the role is amazing. It's a very challenging, a beautiful role. लेकिन नेगेटिव रोल है तो मोहब्बत तो नहीं मिलने वाली आपको ऑडियंस की? मैं तो नहीं ये मानती हूँ. मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी वांटेड, उसमें मैंने एक नेगेटिव रोल किया था एंड आई वाज अप्रिशिएटेड. तो एक एक्टर के लिए नेगेटिव या हो या पॉजिटिव हो, सिर्फ रोल जो होता है वो स्ट्रांग होना चाहिए और उसमें परफॉर्मेंस होनी चाहिए. दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. तो बैड में भी गुड होता है. Hi, my question is for Raj. Roshni here from Best Media Info. This side. Nagin was a high-rated show. I mean, wasn't it a risk to pull it off and put something else? I mean, I don't say that this might work as well, but then pulling off a show that is the top show for last 6-7 months. As leaders, we have to behave like leaders, and I think that's one problem that has been a problem with the Indian media industry. हम एक शो जब चलता है, हम प्लान करते हैं 1 साल चलता है, पता चला कि 7 साल तक चलता है, क्योंकि हम when the show is doing extremely well, we don't want to remove the show. उसको जितना हो सकता है हम उसको क्या बोलते हैं, we keep squeezing the show जब तक उसकी TRP नीचे आके फिर फ्रेंचाइज भी खत्म हो जाता है. तो Colors is in a position today where we are leaders and we want to behave like leaders. हम सोचते हैं कि अगर हम इस वक्त एक्सपेरिमेंट ना करें तो कौन करेगा. एंड हाई रिस्क इज हाई गेन. और हमने कहा है Colors has been known as a channel that gives you cutting edge content, gives you differentiated content, and we have always taken risks and will continue to take risks. और हमको नहीं लगता कि ये रिस्क है, क्योंकि ये जो शो हमने देखा है, इसको समझा है, हमें उम्मीद है कि ये नागिन से भी ज़्यादा रेटिंग करेगा. Thank you. महक, Yeah. आप कैसे हो अब?
यहाँ बैठी हूँ आपके सामने, आपको अच्छा, कैसा लग रहा है? खबरें आ रही थी कि आपको चोट लगने के बाद आप शो नहीं कंटिन्यू करोगे या शूटिंग लाइक पोस्टपोन होगी, बट ये फाइनाइट सीरीज है तो कैसे मैनेज करोगे? एंड इजी भी नहीं है, सारे स्टंट्स रहते हैं एंड हार्नेस वगैरह का ही ऑलमोस्ट काम है, तो आप एंड मोना किस तरह से, मोना तो कर लेंगे, आप अब कैसे करोगे? शायद खबरें भी आई थी कि शो छोड़ रहे हो आप, तो ये कितनी सही है? पहली बात तो आई एम सो हैप्पी कि आप इतने कंसर्न्ड हैं आप सब, थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक हूँ, सरदार नहीं हूँ तो बहुत स्ट्रांग हूँ। ऑलरेडी सेकेंड डे में शूट पे वापस चले गई थी। थोड़ा सा मूवमेंट में प्रॉब्लम है, जब तक मैं बेहतर नहीं रहूँगी, लेकिन एकता जी एंड बालाजी इज़ बिन अमेजिंग। मुझे बहुत रेस्ट देते हैं और एकदम क्वीन की तरह रखते हैं सेट पे। तो पहले के 2 हफ्ते में साफ ज़ाहिर है थोड़ी सी मूवमेंट में प्रॉब्लम होगी, लेकिन आई थिंक आई विल बी बैक ऑन माई फीट वेरी वेरी क्विकली एंड एंटरटेन यू गाइस सॉलिड। हाय विवेक, पर्सनली कितना बिलीव करते हो सुपरनैचुरल पावर्स, ये भूत प्रेत, कभी सामना हुआ है? नहीं ना ही हो तो अच्छा है, मैं बिलीव नहीं करता हूँ सुपरनैचुरल पावर्स में। He's just experiencing now. अभी उसको पता नहीं उसको what has hit him. I know. Because I've never experienced it, I don't say, I cannot say out for sure that it does not exist. Maybe it exists. It's never happened to me is what I claim. क्योंकि स्टोरीज आपको सुनने को मिलती हैं इधर उधर से कहीं ना कहीं से। हमारे स्टूडियोज बॉम्बे में ऐसे स्टूडियोज हैं, ऐसी कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पर आपको रात को शूट करने को अलाउड नहीं है। So there must be something spooky, something eerie happening there. We don't know, but it's never happened to me, and I hope it doesn't. Okay. Are we done? Sir, my question is for Raj, sir. Sonam. So last year you launched 3 shows with Balaji Telefilms, and this is the 4th show in the row. So what is next in the list with the Balaji Telefilms? Will we see more shows on same concept or coming? Unfortunately, we have only one channel on which we run shows. Otherwise, we would have had 20 shows of Balaji on air by now. Wow. So I think काफी सवाल में जवाब मिल गए और धीरे धीरे आई थिंक एवरी वीकेंड बहुत जवाब मिलने वाले हैं। मेरा सवाल जस्सी जी से है। आई थिंक विल गो विद द लास्ट वन। कौन है जस्सी? जस्सी गई। जस्सी कोई नहीं से है। जस्सी कोई नहीं है अभी तक। जस्सी ने कलर बदल दिया। ये एक्चुअली उस दिन हम लिफ्ट में जा रहे थे और इनसे किसी ने कहा था आप जस्सी कोई नहीं है ना? ये नहीं जस्सी है। मेरा सवाल है कि आप मतलब इतना हार्ड रोल कर रही हैं, एक्चुअली लोग 3 घंटे की फिल्म में ही इतना परेशान हो जाते हैं कि उनको छुट्टी पे जाना पड़ता है, और 3 घंटे की मूवी में परेशान हो जाते हैं। लाइक भूत फिल्म के लिए उर्मिला जी ने जब किया था तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतना मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी कि मुझे जाना पड़ा छुट्टी पे। अच्छा, हाँ। तो आप तो कंटिन्यू करने वाली हैं, तो कैसे मैनेज करेंगी? एक्चुअली पहले जब लोग मुझसे पूछते थे कि जो आप किरदार निभा रहे हो, जैसे डिप्रेसिंग सीन्स होते हैं, हाउ डू यू स्विच ऑफ एज एन एक्टर, बट वहाँ पे कुछ ऐसी मुश्किल नहीं लगती थी, हाउ टू स्विच ऑफ, हाउ टू स्विच ऑन, क्या प्रिपरेशंस करें। बट ये एक ऐसा शो है जो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ दैट शूटिंग के वक्त डर नहीं लगता है, बिकॉज देयर एटलीस्ट 100 पीपल अराउंड यू। जब अंधेरे में रात में सीन्स करने होते हैं तब बिल्कुल डर नहीं लगता, बट व्हेन आई गेट होम तो माई माइंड स्टार्ट्स प्लेइंग गेम्स विद मी, मुझे नींद नहीं आती है। आई एक्चुअली फील कि पर्दे के पीछे कोई है, ओ ये आवाज़ कहाँ से आई, देयर समवन अंडर द बेड। तो ये थोड़ा स्पूकी साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है शूटिंग के बाद। तो आई थिंक आई विल हैव टू प्लान अ ब्रेक, कहीं जाना पड़ेगा छुट्टी लेके, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल टैक्सिंग, थोड़ा डर लगता है। So thank you so much. I think rest of the questions will be
आप हिंदी में पूछिए, हिंदी में बात करनी है। मुझे लगता है VFX के साथ इतना मुश्किल नहीं है, ज़्यादातर जो किरदार निभा रही हूँ उसमें ज़्यादा चैलेंज है, क्योंकि पहली बार भूत का रोल निभा रही हूँ, किरदार निभा रही हूँ, तो उसमें अलग तरीके से जो इस लड़की का किरदार है, अलग तरीके से वो बात करती है, अलग तरीके से करती है, जैसे हम नॉर्मल स्पीड में फिल्म जब डिलीवर करते हैं डायलॉग्स फिल्मों में या TV शोज़ में, उस तरीके से नहीं है। तो मैंने काफ़ी स्टडी की, और मैंने जो मेरे डायरेक्टर जी हैं संतराम जी, उनके साथ भी काफ़ी बातचीत की मैंने कि ये कैसे करेंगे अब। वो कई बार ऐसा होता है हमारी जहन में ये बात होती है कि जो भूत होता है वो वाह ऐसे डराता है, ऐसे करती है, इस तरीके से देखती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं था। ये लड़की बहुत स्ट्रांग है, बहुत सेक्सी है, सेडक्टिव है, और जब भी वो बात करती है तो ऐसे कि मतलब कोई स्पेल आपके ऊपर हो जाता है, तो वो जैसे जब मेरे से ये पूछा जाता है कि आप सुपरनैचुरल ये सब एनर्जी में आप मानते हो, शैतान में मानते हो कि वो है, या नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जीज, तो मैं हमेशा ये पूछती हूँ और अपने आप से सोचती हूँ कि मैंने कभी ज़िंदगी में भगवान जी को तो देखा नहीं है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जीज है जो हम महसूस करते हैं। तो जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी होती है, मैं ये मानती हूँ। जहाँ भगवान है वहाँ शैतान भी है। हमारी ज़िंदगी के बाद क्या होता है, क्या नहीं होता, हम कहाँ जाते हैं, क्यों हम लोग बोलते हैं कर्मा, इसको अपना कर्मा मिल गया, तो वो क्या है, ये सब जवाब तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं मेरे जहन में हमेशा ये होता है कि कुछ ना कुछ है जिसके पास मेरा मेरे पास जवाब नहीं है उसका, लेकिन आपको जवाब मिला। मैं मानती हूँ कि कोई भी किरदार आप निभाते हो, फिल्म में हो या TV हो, अगर आप अच्छे से निभाते हो और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है जिस पे आप परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, आप अपने एक्टिंग स्किल्स दिखा सकते हो, डायलॉग डिलीवरी, अलग रूप दिखा सकते हो, तो वो लोगों की आंखों की नज़रों में वो आता है और आपको अप्रिशिएट किया जाता है। तो साफ जाहिर है मैं कोई भी काम करती हूँ, कोई भी रेस इंसान जब शुरू करता है दौड़ने के लिए तो वो हमेशा मंजिल तक बेस्ट पहुंचना चाहता है, नंबर 1 पहुंचना चाहता है। तो मैंने ये शुरुआत इस किरदार या रोल को भी वैसे ही मैंने अपने दिमाग में सोच के रखा है कि मैं भी वहाँ तक पहुंच जाएंगे। बिल्कुल नहीं। मुझे याद है प्रियंका चोपड़ा ने भी एक ऐतराज़ फिल्म में उन्होंने एक नेगेटिव कैरेक्टर निभाया था। सबसे बहस तो शाहरुख खान जी बाजीगर थी ना, जहाँ उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था डर में। तो यहाँ साफ दिखाई देता है, और इट्स बिन प्रूव्ड ऑल्सो कि किरदार ही होता है, नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। वो ज़माने गए कि जहाँ एक फिल्म में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलन होता है। आजकल परफॉर्मेंस बेस्ड सब कुछ होता है। एंड आई थिंक ये कैरेक्टर जिस तरीके से इन्होंने ये लिखा भी है, शी इज़ वेरी सेंशुअस, डार्क कैरेक्टर है, सेक्सी है और बहुत परफॉर्मेंस बेस्ड है। तो आई थिंक इट हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट फॉर मी एंड जो ऑडियंस देखते हैं। आप सब क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो? देखिए, कई बार जब इंसान को चोट लगती है तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है कि अगर मैं एक जगह बैठ के डिप्रेस होकर बोलूँगी मैं ठीक नहीं हो रही तो साफ जाहिर है टाइम लगेगा। दिमाग बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ होती है, तो आप जितना चाहो कि आप आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक होना चाहते हो, और मैं हूँ भी सरदार नहीं तो हूँ काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो आई थिंक दैट्स गोना हेल्प मी अ लॉट। एंड ऑफ कोर्स आप सबका वेल विशेस एंड प्रेयर्स साथ में है तो मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाऊँगी। Watch the show, Kavach, yay! Okay, sir, we know lead character, but still, if you can describe a bit of deeply about the show, about your character.
हाँ जी, मैं राजवीर प्ले कर रहा हूँ. हम राजस्थानी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एक बिजनेस फैमिली से, और बहुत ही रईस फैमिली है, ख़ानदानी फैमिली है. और मेरी कुछ 4 फियांसे थे, मतलब फियांसे नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड्स थी, और जिनकी मौत हो गई क्योंकि वो मेरे बहुत करीब आई. सो ऐसा होता रहा है. लेकिन परिधि happens to be Paridhi, who is played by Mona Singh. She happens to be the first one who surpassed this threat of being killed, क्योंकि उनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है. सो क्या होता है, हम दोनों के बीच में कौन आता है? मंजुलिका, जो महक है, जो मुझे पाना चाहती है, एक ईवल फोर्स है, सुपर नेचुरल पावर है, वो हम दोनों के बीच में कैसे आती है और वो मुझ पर कैसे वशीकरण करती है, मुझे कैसे स्पेल बाउंड करती है, एंड देन इवेंचुअली परिधि मेरा कैसे कवच बनती है इस काली शक्ति से. दैट्स व्हाट द शो इज अबाउट. Okay, how was your experience working with Mona, working with Mahek? I could not have thought of a better platform to get launched. Not just Mahek, of course, Mahek and Mona, they are seasoned actors. Mona Singh has been on TV for over a decade now, and we all know that she's such a refined and polished actor. So needless to talk about her talent, I would just say that my equation with both of them is very strong, very good, and thankfully it's like that. And I'd like to thank Ekta Kapoor for giving me this opportunity, who feels that I can stand opposite Mona Singh and pull off this responsibility. What was your audition like for this role? My audition was just like any regular look test. It was more of a look test, not an audition, where there were a few boys who were being look tested against Mona and Mahek separately. So we were given scenes, and eventually Ekta decided on whose chemistry works out to be the best with Mona. Which was one of the funniest experiences you had on the set, because everyone asked you about the scary ones. The funniest one, I'd have to really think hard for the funniest, because you know what, this show has really got us. I think, you know, just the little pranks that we do on set with each other. So one of our co-directors happens to be Haryanvi, so I keep learning Haryanvi from her, even though I'm from Haryana myself. लेकिन हरियाणवी में मेरा थोड़ा सा हाथ तंग है. So हम लोग वो जो हरियाणवी jokes हैं वो crack करते रहते हैं. So that it just keeps it very light, and we really enjoy that. After this, which VFX oriented serial would you like to work in if it was your dream project, special? Oh, I don't know. I'm a very spontaneous guy. I don't really plan things out. Because every time I've planned in life, be it as small as planning a vacation, or be it planning my relationship or career or whatever, everything's gone for a toss. So I'd rather not plan. I just live for the day, and I don't think about tomorrow. Also news is that you are getting married. The news, yeah, everyone knows that. We are. I'm getting married to Divyanka Tripathi, and it's next month. And I wish I could just invite all of you, but it's not physically possible. But every single day we're getting messages left, right, and center congratulating us, and I'm really indebted. I feel very humbled by all the sweetness and all the showering of love and adulation that keeps coming our way. दिव्यांका को आपने शो के बारे में बताया, उनका क्या रिएक्शन रहा शो को? उनका रिएक्शन बहुत अच्छा था, एंड थैंकफुली सो. अगर उनका रिएक्शन अच्छा ना होता तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिलता, बिकॉज आई रियली लुक अप टू हर पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली. she's mastered it all, I feel, and I just feel very fortunate that I've got a life partner. I've got a wife who's extremely talented in the line of work that I am in. So उनको बहुत अच्छा लगा, तो मुझे वैलिडेशन मिल गई कि हाँ, things are going smooth. Last question, what would you like to tell to audience regarding the show? मैं ये कहना चाहूँगा कि this is going to be the thriller of the year. These kind of shows don't get made every day, and it's the best team possible that you could find. It'll keep you hooked to your seats. It'll be very spine chilling, and it'll just give you the goosebumps the way we feel it. And just watch the show, and you know what I'm talking about, and just spread the word. Please watch our show, and it comes Saturday.